آگے دو نشاد دو تری نواز خواجہ العلی بابا میں پیش آتا ہوں سماعت فرمائیے خواجہ یہ تو دربار ہے اللہ تیرا کبھی میرو نہیں مانگنے والا تیرا جس کو نے یقین آئے میرے چلا جائے صدقہ میں خواجہ تیرے سر پر سونے کا تاور پھر بھی ہے تو میری نواز پھر بھی ہے تو میری نواز ہند میں ایک ہی در ایسا ہے جو جاتا ہے کوئی خالی ہاتھ الحمدللہ نہیں آتا ہے ہمارا ایمان اور یہ یقین ہے کہ اللہ کے یہ محبوب ہے ان کی طرف سے کوئی خالی کبھی ہوتا ہے اور ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں حاضری ہو جاتی ہے تو آئیے دو تین شعر میری موت کی بات آپ پیش کرتا ہوں معین الدین
آئیے اب نائب سرکار کے حوالے پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے سرکار کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے صلوات کی چھاؤں میں کر لیتے گئے. نعرے تکبیر اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی یا خاقان اہل بیت. میرے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ آگے محفل میں آ کر ثواب حاصل کریں. اور جہاں تک میری آواز گونج رہی ہے میں آپ سے پھر سے ایک بار التجا کرتا ہوں کہ آگے محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو جلد سے جلد محفل میں آ کر ثواب حاصل کریں اور جتنا باوضو بیٹھے اتنا فیض پاؤ گے. الفاتحہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میلاد مسیح હા ઘરે પડ્યા છો એ આવવાનું. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم. صلوا عليه صلاة دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقد أمري الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا ગરમી رحمن. થાય ગરમી થાય તો એ તો બરોબર રાઈટ તમે પંખા નીચે રાખ્યો એટલે થોડુંક પાછું થાય ને. باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام કેટલા લાઈવ છે ઓકે حاضران بزم خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمنے بے سروسا مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفانو شکسترات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. عزیزان محترم خطبہ مسئلہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جھوم کر باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پڑھیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم. صلو علیہ صلاة دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم.
सल्लु अलैहि सलातन दाइमन लिखिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका हुसैन की बारगाह में हिंद का शहंशाह इशाद फरमाते हुए अपनी कलम जो है चलाते हुए ये ऐलान करते हुए ये अशार लिखते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये वो आका हुसैन है जो दीन भी है, दीन की पनाह भी है, ईमान भी है, ईमान का जुज़ भी है, और जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह इश्क करे वो नवासा रसूल आका हुसैन की दाते बरकत है। आइए ना कुरान अजीम की अजीम आयतों की तिलावत की। कल मैंने आपके सामने इसी आयत करीमा के हवाले से, इसी आयत करीमा के मुताबिक मैंने आपके सामने जिक्र अहले बैत अतहार किया। कौन अहले बैत अतहार कि जिसकी पाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में करता है। कौन अहले बैत अतहार जिसकी तहारत खुद रब्बे जुल जलाल कुरान अजीम में उतार के यूं कहे, ऐ महबूब आपकी औलादों को हमने पाक और साफ सुथरा करके दुनिया में पैदा फरमाया। यानी जो भी अहले बैत अतहार इस दुनिया में आते रहे, यानी कयामत तक आका हसन के बाद आका हुसैन और आका हुसैन की नस्ल दर नस्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जितने भी 12 इमाम आते रहे, गौसे आज़म आते रहे, गरीब नवाज आते रहे, यानी जितने भी अहले बैत अतहार सूबे कयामत तक आते रहेंगे, तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये ऐलान करते हुए यूं कहता है, ऐ महबूब हमने आपको आपकी औलादों को पाक और साफ सुथरा जो है करके दुनिया में पैदा फरमाया। पाक और साफ सुथरा अहले बैत अतहार की जो है तहारतों को रब अपने कलाम में बयां करता है। और कल मैंने आपको जिस आयत करीमा के हवाले से बताया, वल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, यानी अल्लाह फरमाता है महबूब आप अपने जो है उम्मतियों से कह दो, आपके चाहने वालों से कह दो, मैंने जो है कायनात का जर्रा जर्रा पैदा फरमाया, लेकिन उसकी उजरत, उसकी कीमत और उसका बदला नहीं चाहता यही हूं कि आपके औलादों से मोहब्बत करे। फिल कुर्बा के आयत करीमा पढ़ने का वजह और इस आयत करीमा का मफहूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यह ऐलान करते हुए कहता है मुअद्दत, यानी अहले बैत अतहार से मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है और हमें चाहिए कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे, इसलिए कि कायनात अगर कोई तुम्हें कोई चीज दे तो उसकी वो कीमत चाहता है, उसका वो बदला चाहता है, इसलिए कि वो तुम पर एहसान तो कर रहा है ना कुछ तुम्हारी जरूरत के मुताबिक अगर तुम्हें कुछ दे दिया जाए, कोई शख्स तुम्हें कुछ न कुछ दे दे तो फिर वो एक तमन्ना रखता है, दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि जिसको मैंने मदद की है, जिसकी जो चीज की है मैंने जो है उससे कुछ न कुछ हासिल करना है, ये दिल में उसके ख्याल तो पैदा होता है, ये दिल में ख्याल पैदा होता है। ये कहते हैं कि जो है कोई किसी पर एहसान करे उसका वो बदला चाहता है, लेकिन कुर्बान जाए अहले बैत अतहार की ज़ाते बाबरकार पर, उनकी अज़मतों पे कुर्बान। अरे जिसके नगमे कुरान गाता है, जिससे मोहब्बत अल्लाह खुद फरमाता है और फरमाते हुए यूं कहता है कायनात को पैदा किया, हमें सांसें दी, हमें जिंदगी दी, सब कुछ दी, ऐ महबूब आपकी उम्मतों को मैंने जो है तमाम अज़ाब से महफूज फरमाया, हर चीज से उन्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजा, लेकिन कुछ नहीं चाहता। रब कहता है कुछ नहीं चाहता यही हूं कि आपके औलादों से मोहब्बत की जाए, मुअद्दत की जाए। यह अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे लिए ईमान का हिस्सा है, और जिन्होंने अहले बैत अतहार से मोहब्बत की, रब किससे कैसी मोहब्बत फरमाता है आप तो बखूबी जानते हैं कि अहले बैत अतहार से जो है रब इतनी बेशुमार मोहब्बत फरमाता है, और सैयदाए पाक के जितने भी बेटे जो है इस जमीन पर आते रहेंगे
अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सदके जो है तमाम को हिदायत और ईमान से माला माल फरमा देगा। ये अहले-बैत अतहार की मोहब्बत है। अब देखिए ना, हमने अहले-बैत अतहार की मोहब्बतों को सुनना है और अहले-बैत अतहार की मोहब्बतों पर जो है जुल्म सितम ढाए, किन्होंने ढाए? उन जालिमों ने जो है जुल्म सितम ढाए, लेकिन वो अहले-बैत अतहार, वो नबी के नवासे, वो अली के लख्ते जिगर की शान के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, सब्र और इस्तिकामत के पैकर बनते हुए नजर आते हैं। किस कदर जो है अहले-बैत अतहार सब्र के पहाड़ बनकर जो है वो जौहर दिखाते हुए जो अहले-बैत अतहार मुसलमानों की हिफाजत करते हुए इस्लाम का बोलबाला फरमाते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक दिन जो है मैंने आका जो है एक दिन मैंने जो है हसन मुज्तबा और आका हुसैन को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने कहा, ए मेरे दोनों शहजादों, ए मेरे नवासों, जरा बताओ तो सही। अब देखे सब्र और इस्तिकामत को देखे, किस कदर जो है नवासों को तरबियत दी थी नाना जान ने, किस कदर जो है बाबा अली ने जो है उन्हें तरबियत दी थी। कहा जब वो अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दोनों शहजादों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, ए मेरे शहजादों, ए मेरे नवासों, जरा बताओ तो सही, क्या पहले सबसे पहले आका हसन से कहा, ए हसन मुज्तबा, ए मेरे लख्ते जिगर, ए नूरे नजर, क्या तुम पर अगर कोई जुल्म सितम करे तो तुम क्या करोगे? सुने, हमें आज जो है सब्र इस्तिकामत का पैकर बनना है और सब्र जो है हमारे लिए ईमान का जुज बन जाता है। सब्र जो करता है, तो जिस पर जुल्म किया जाता है, अल्लाह उसका बदला उसे जरूर अता करता है। इसलिए कि जो सब्र करता है अल्लाह के नजदीक बड़ा वो प्यारा नजर आता है। कहा आका हसन से पूछा गया, नवासा ए नवासे, अगर तुम पर जुल्म किया जाए, सबसे पहले बेटे नवासा रसूल जो है हसन मुज्तबा को पूछा गया, जरा बताओ तो सही, अगर तुम पर जुल्म सितम किए जाए, तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ डाले जाए, ए हसन मुज्तबा जरा बताओ तुम क्या करोगे? क्या कहा, तुम क्या करोगे? कहा नाना जान, ये आपने बात कही ना, अब आप सुने। कहा अगर हम मुझ पर कोई जुल्म सितम ढाए तो मैं सब्र करूंगा। क्या कहा? सब्र जिसके यहाँ दरवाजे से निकला है, सब्र जिसके सदके निकला है, आका हसन कहते हैं मैं सब्र करूंगा। बड़े भाई से पूछा गया, अब छोटे भाई आका हुसैन से पूछा, ऐ मेरे नवासे, जरा बता तो सही, अगर तुम पर कोई जुल्म सितम करे तो फिर तुम क्या करोगे? जवाब दोनों का एक ही था, गौर से सुने, जवाब दोनों शहजादों का, इसलिए कि दोनों आका को बड़े मोहब्बत थी, आका को बड़ी मोहब्बत थी और दोनों प्यारे थे और रब को एक प्यारा था और एक जो है महबूब को प्यारा था। यहाँ तक कि दोनों रब को प्यारे थे, लेकिन जो है इश्क के मामले में जो है रब जो है किससे ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन जो है उन दोनों से भी इतनी बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। आका भी मोहब्बत फरमाते हैं। जो है आका हुसैन से पूछा गया, ऐ मेरे नवासे, अगर तुम पर कोई जुल्म सितम ढाया जाए तो तुम क्या करोगे? कहा नाना जान, अगर मुझ पर जुल्म सितम किए जाए तो मैं जरूर सब्र करूंगा। क्या कहा? सबसे बड़े शहजादे ने कहा, नाना जान सब्र करूंगा। छोटा भाई भी कह रहा है, आका हुसैन भी कह रहे हैं, नाना जान मैं सब्र करूंगा। बड़ा भी कह रहा है सब्र करूंगा, छोटा भी कह रहा है सब्र करूंगा। लेकिन सुनो सुनो ऐ सुन्नियों, अब आपके दिलों पर हाथ रखकर ये ऐलानिया मैं कह रहा हूं, सुनो। आका हुसैन फरमाते हैं, आका अगर मुझ पर जुल्म किया जाए मैं सब्र जरूर करूंगा, लेकिन नाना जान आपके दीन पर अगर कोई आंच लगाएगा तो हुसैन की तलवार जो है वो जुल्फिकार हैदरी की तलवार जो है आसमान में लहराई जाएगी और कुफ्र का जो है खात्मा किया जाएगा। क्या कहा? कहा अगर नाना जान आपके दीन पर, अब दीन हमें बचाना, किस कदर जो है उन्होंने दीन को बचाया है। नाना जान को ये ऐलान तो कर दिया सब्र करेंगे, लेकिन नाना जान
آپ کے دین پر آج آئی تو پھر حسین ابن علی کی وہ ذوالفقار نکلے گی اور کافروں کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں فی نار جہنم پہنچا دے گی. یہ جذبہ تھا آقا حسین کا. لیکن صبر استقامت کے پیکر اور صبر استقامت کے جوہر دکھا کر جو ہے گزر گئے اور بتایا کہ مذہب اسلام میں اخلاق سے دین جو ہے بچا ہے اور اخلاق سے دین پھیلا ہے. لیکن جب ضرورت پڑی صبر سے کام لیا گیا اور جب صبر جو ہے ختم ہوا تو پھر وہ رب کے ماتحت حضور کے دین کی خاطر تلواروں کو بھی لہرایا گیا, نیزوں کو بھی نکالا گیا اور تیروں کو بھی نکالا گیا. اس لیے کہ مذہب اسلام ہمارے نزدیک سب سے بڑا مذہب ہے اور وہ آقا کا دین ہے. ہمیں دین کو بچانا ہے. اگر ہمارے کوئی بھائی جو ہے کئی گمراہیت کے دلدلوں میں پھنسے ہیں اور ان ظالموں کے چنگلوں میں پھنسے ہیں, انہیں یہ تربیت دو کہ آقا حسین نے کس قدر جو ہے ظلم و ستم سہ کر جو ہے مذہب اسلام کو مضبوطی دی تھی, بلندیاں دی تھی. آقا حسین کس قدر جو ہے اپنے بھائی سے پیار کرتے تھے. کہا آقا حسن میرے پیشوا میرے آقا ہے. کون؟ حسن مجتبی کہ جس کی عظمتوں پہ قربان, جس کی شان پر قربان. آقا حسن نے 25 دفعہ پیدل چل کے حج کیا لیکن ان کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ جو ہے آقا حسین ہوا کرتے تھے. کبھی بھی آقا حسن کے آگے آگے نہ چلتے بلکہ پیچھے چلتے, ادب کے ساتھ چلتے. کہا وہ مقام آقا حسن مجتبی رکھتے ہیں کہ جس کے لیے جو ہے اپنا محبوب اشارت فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں. کہا حسین جو ہے میرا بڑا پیارا ہے لیکن حسن وہ ہے جو سید ہے. ہاتھ پکڑ کر آقا حسن کو جو یہ کہتے ہیں میرا بیٹا حسن جو ہے سید ہے, یعنی مومنوں کے لیے سردار ہے. سردار ہاں یہ سید ہے جس کا مقام اتنا بلند و بالا ہو. کہا جس کو حضور اپنے مشابہ کہے, خطبہ پڑھے تو آقا کی یاد آ جائے, خطبہ پڑھے تو آقا کی جو ہے وہ خطبے کی یاد آ جائے. وہ آقا جو ہے خطبے کو چھوڑ کر نوازوں کے لیے ممبر سے نیچے اتر جائے. وہ نوازے اب دیکھو جو ہے کوفہ کی جامع مسجد میں جو ہے مولا مشکل کی شاہ کی شہادت جب واقع ہوئی نا, اس کے بعد اب کچھ نہ رہا, کچھ نہ رہا. اس لیے کہ جو ہے خلافتیں ختم ہوئی. اب جو ہے خلافت پر کون بیٹھے گا؟ زندگی حیات میں مولا مشکل کشا سے پوچھا, کہا میرے بعد تمہارے بعد کون امیر المومنین بنے گا؟ کہا اس کے لیے حضور نے کسی کو مخاطب ہو کر جو ہے یہ نہیں کہا تھا بلکہ تمام نے جو تسلیم کیا. حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا مشکل کشا آئے لیکن دور خلافتیں چلتی رہی, خلافتیں جو ہے آگے بڑھتی رہی. کوفہ کی جامع مسجد میں اس ملعون نے جو ہے خنجر جو ہے زہریلا لگا کر جو ہے مولا مشکل کشا کی جو ہے شہادت جس پر واقع ہوئی, مجھے جو ہے ابھی مولا مشکل کشا کی شہادت جو ہے تفصیل سے نہیں بتانی اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ابھی ہم نے جو ہے داستان کربلا کو سننا ہے, وہ شہادت کو سننا ہے, لیکن آؤ نا جس کو خود آقا حسین جس کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں, ارے آقا حسین فرماتے ہیں کہ میرا مولا میرا پیشوا اگر کوئی تھا, میرا رہبر اگر کوئی ہے تو وہ حسن مجتبی کی ذات بابرکات. کہا میرا امام اگر کوئی امام ہے, حسین کہتے ہیں اگر میرا کوئی امام ہے تو وہ میرا امام حسن مجتبی ہے. کس قدر جو ہے آقا حسین حسن مجتبی سے پیار کرتے ہیں. اب ہمیں سننا ہے کہ جو ہے یہ دونوں شہزادے کس شان کے مالک تھے, یہ دونوں شہزادے کس انداز میں جو ہے اپنی
जिंदगी को बशर कर रहे थे, कैसा उनमें प्यार था। लेकिन हमें यह भी सुनना है कि किस कदर उन जालिमों ने उन पर जुल्म किया था, उन पर किस तरह जुल्म ढाया था। मैंने आपको कल बताया ना कि किस कदर जो है आका हसन मुजतबा पर जुल्म ढाया गया और कैसा जुल्म सितम किया गया। आप जो है जाने कि जिसके लिए जो है अल्लाह जो है फैसले कर दे, तख्तियों को बराबर करके आका की बारगाह में जिब्रील को भेज कर कहे ये दोनों सही लिखने वाले हैं। फैसला रब कर रहा है, जिनके जन्नती जोड़े आते हैं रब फैसला करता है। अब सुने अरे जन्नत जिसके इख्तियार में है, कहा जिनके बाबा का जोड़ा आसमान में लिखा जाए, अंबिया के पास जिनका जिक्र किया जाए, अरे उनके बेटे उनके लाडले, सुनो वो जो जिसके लिए जन्नती जो है जवानों का जो है लक़ब दिया जाए, अरे वो जन्नती जिनके जोड़े जन्नत से आए जाए, अरे वो जिसकी कुश्तियां अगर दुनिया में लड़ी जाए, जिनके फैसले करने के लिए हुजूर खड़े हो, अल्लाह जिब्रील को भेजकर हुसैन की जो है मदद करते हुए दोनों भाइयों को बराबर करे। अरे वो हुकूमतें तो दोनों की थी ना, वो शहनशाही वो दोनों की थी, लेकिन देखे ना किस कदर जो है उन जालिमों ने जुल्म सितम ढाए, लेकिन सब्र इस्तिकामत के जौहर आका हसन मुजतबा ने भी दिखाए। नाना जान के जो है उम्मतियों को ये दर्स दिया, ऐ लोगों जिस अंदाज में तुम्हें जिंदगी को गुजारना है, जिस अंदाज में तुम्हें सब्र करना है, अगर कोई तुम पर जुल्म सितम करे माफ कर दो बिला वजह। अगर तुम माफ कर दोगे अल्लाह कहता है कल रोज़े क़यामत के दिन उसे बगैर हिसाब और किताब में जन्नत में दाखिल करूंगा। सब्र इस्तिकामत ये वो चीज है। कहा वो लोग जो सब्र इस्तिकामत कर गए और उन्होंने ये जौहर बता दिया। दीन इस्लाम पर जुल्म बहुत हुए और जो है मजहब इस्लाम पर जुल्म ढाए गए। ये पहले से जुल्म सितम का दास्तां चला आ रहा है। अहले बैत अतार, अहले बैत नबूवत पर जो है जुल्म सितम आज भी हो रहे हैं और सूबे क़यामत तक होते रहेंगे। लेकिन जो अकीदत वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बतें रखती है, फिर वो तो कामयाब है। फिर वो तो जो है इस तरह हम जो बैठे हैं इस तरह महफिलों को सजाते हैं। कुर्बान जाए उनके लिए जो आका हुसैन की महफिल को सजाते हैं। कुर्बान जाए उनके लिए जो आका हसन मुजतबा की याद में महफिल को सजाते हैं। ये वो नवासे हैं कि जिनके नवासों की जो है महफिल को अगर कोई सजाता है, खुद आका फरमाते हैं कि जो मेरे नाम पर महफिल सजाता है खुद वो महफिल में मैं आया करता हूँ। कहा मैं खुद जो है उस महफिल में आया करता हूँ। हम बड़े खुश नसीब है कि हमने जो है अपना ऐसा मुकद्दर पाया कि आज अल्लाह ने हमें पसंद फरमा दिया। कह दो तड़प के, कहा अल्लाह ने हमें बड़ा पसंद फरमाया। कहा हम यजीदी तो नहीं है, न उसके छींके हमारे में है, बल्कि हम तो हमारे रगों में आज भी हुसैन का जो है नारा बुलंद है। आज भी हमारे दिलों में हुसैन जिंदाबाद का नारा हमारे दिलों में मौजूद है और आज भी हमें हुसैन का नगमा गाते हैं। सूबे क़यामत तक गाते रहेंगे, मरते दम तक हुसैनियत का जज्बा हमारे दिलों में होगा, हमारे बच्चों के दिलों में होगा। कि हमारा प्यार कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए कि हमें हुसैन का जज्बा विरासत में मिला। हुसैन का जज्बा हमें विरासत में मिला है। ये वो नवासे हैं जिनसे मोहब्बत की तो फिर अल्लाह ने कामयाबी दे दी, जिन्होंने मोहब्बत की तो बुलंदियों पर फाइज हो गए। लेकिन आओ ना जो है अब मौला मुश्किल कुशा भी न रहे इस दुनिया में, फानी दुनिया से। हुजूर मौलाए कायनात जो है वो भी रुखसत हुए और जो है सैयदाए पाक भी रुखसत हुई। लेकिन जो है मैं हर एक की तफसील के साथ जो है शहादत को बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो है हमें आगे भी बढ़ना है। जिसकी शहादत को हमें सुनना है और जो है शहादतों का अब जो है मंजर हमारे दरमियान में आने वाला है। लोगों ये शहादत सुनकर जो है हमें जो है दिल में कैफियत तारी होनी है। इसलिए तो किसी ने कहा था
सही मानों में हम हुसैनियत का दम तो करते हैं, हुसैन से मोहब्बत तो करते हैं, आका हसन से मोहब्बत करते हैं, आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं। कहा ये हुसैनियत का जो है जज्बा हमारे दिलों में है, हमारे दिलों में पैवस्त है। कहा हम मानते हैं, कहा ये जज्बा हमारे लिए बिजा कब होगा। कहा आका हुसैन हमसे खुश कब होंगे। कहा बताया गया अगर तुम पर कोई वजदारी हो जाए, वजदारी हो जाए, कहा आका हुसैन की याद में तुम्हारी आंखें अश्क बहार हो जाए, तुम्हारी आंखें रोने लगे, तुम्हारे दिल नरम हो जाए, तुम्हारा जिस्म कांपने लगे, सही मानों में याद करना कि आका हुसैन ने तुम्हें पसंद फरमाया है। ये हुसैनियत का दावा होना चाहिए। आज हम जो है शहादत को सुन के जो है बुला नहीं देना, बल्कि शहादत को सुन के ये दिलों में हमें जो ये पैवस्त करना है, ये कबूल करना है कि वाकई हम हुसैन का दम तो भरते हैं, लेकिन जब उनका नाम आता है, वो शहादत का वक्त जो है हमारे दरमियान में आता है, तो हमारी आंखें नम हो जाती है, हमारे दिल जो है कांपने लगते हैं, हमारा जिस्म कांपने लगता है। सही मानों में हम जो है उसी अंदाज में आका हुसैन की मोहब्बत करने वाले हैं। यही असल जो है आका हुसैन की मोहब्बतों का सिला कि हुसैन का नाम आ जाए, और जब ऐसा मामला हमारे दरमियान में पेश आए, समझ लेना वाकई हम हुसैन का दम भरने वाले हैं, हुसैन इब्ने अली का दम भरने वाले हैं। हमें चाहिए इसी तरह हम मोहब्बत करें और प्यार करें। अहले बैत अतहार से मोहब्बत ये जो है हमारा ईमान का जुज है। बारहा कहूँगा इसलिए कि खबरदार तुम्हें किया जाएगा, कल रोज़े क़यामत के दिन ये ऐलान किया जाएगा, ये वो अहले बैत है, वो नबी के घरवाले हैं जो जिन्होंने मोहब्बत की। कहा वो काफिले के साथ मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में दाखिल होंगे। वो लोग कहेंगे हाय अफसोस दुनिया में तो थे, लेकिन जो है हम अहले बैत अतहार को समझ न पाए, ये वो अहले बैत अतहार है। आओ ना हम सुनते हैं कि किस कदर जो है उन जालिमों ने, सिर्फ ये गुमान में रह रहना, इसलिए कि जो है दास्तान करबला सुनने से पहले कई करबला हुई है, कई करबला आका पर जुल्म हुआ, मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर जो है जुल्म किया गया, माँ खदीजतुल कुबरा पर जो है जुल्म ढाया गया, वहां भी पानी बंद किया था। यारो याद रखना, जो है बिलाल हबशी, वो काला कलोटा जिसने सरकार से मोहब्बत की तो अजमतों पर इतना बुलंद वाला हो गया, कहा हूरे भी जिसे हया करती हो, जिसके नग में हूरे भी गाती हो। कहा काले भले थे लेकिन दिल इतना मजबूत था और ईमान से जो है वो माला माल थे। कहा वो जुल्म सितम जो है आका पर भी किया गया, वो जुल्म सितम जो है सब पर किया गया, लेकिन सुनो, कहा वो जुल्म सितम सिर्फ जो है करबला में वाक़ई न हुआ, बल्कि करबला के बाद भी हुआ। इंशाअल्लाह मैं आपको जो है माँ बादे करबला के बाद उन जालिमों ने सैयद जादियों के साथ क्या हुस्न सलूक किया, क्या सलूक किया, वो भी हमें सुनना है। लेकिन आओ ना सिर्फ करबला तक न रुको, लेकिन जिसे आका खुद कहे और हुसैन जिसको आका कहे, और वो हसन मुज्तबा किस तरह उन पर जुल्म ढाया गया, किस तरह वो जुल्म सितम उन पर ढाया गया। आपने सुना ना, जो है वाज़ो नसीहत करने वाले ये कहते थे कि ये कहा करते थे कि आका हसन मुज्तबा को जहर दिया गया। जानते हो ना आका हसन की शहादत किस तरह वाक़ई हुई, आप इस फानी दुनिया से किस तरह गए जानते हो ना। कहा जहर दिया गया, कहा इतना न रहो, इतने तक न रहो, देखो किस कदर जो है आका हसन मुज्तबा पर जुल्म ढाया गया, और 3 मर्तबा नहीं 7 मर्तबा जहर दिया गया था। बताऊंगा मैं आपको किस किस कदर जो है उन जालिमों ने जुल्म ढाया था, किस कदर जो है आका हसन ने जो है सब्र इस्तकामत किया था। भाई ने पूछा था, भाई जरा बताओ तो सही जहर देने वाला कौन है। कहा भाई
भाई अगर मैं तुम्हें कह दूं अगर वो न हुआ तो नाना जान को जवाब क्या देंगे? क्या कहा? अगर वो न हुआ तो आज हम तोहमत किसी पर जो है गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं, किसी पर ताना जनी अगर तुम नहीं जानते तो उसे जो है इस पर उसे मशकूक न बनाओ, उस पर शक न करो, बल्कि ये जान लो कि सही मानों में क्या वो उस चीज उसने की है या नहीं की। वो हसन मुजतबा जिस पर ऐसा जुल्म किया गया, जहर उन पर जो है दिया गया, किस कदर दिया गया, किस कदर दिया गया। जो है मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक शहर आबाद। गौर से सुनना और जो है ये सुने इसलिए कि दास्ताने करबला को हमें सुनना है, लेकिन उससे पहले करबला भी हुआ है, उससे पहले हसन मुजतबा पर किस कदर उन जालिमों ने किस कदर जुल्म डाया था। आप सुने जो है मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक शहर आबाद था जिसे मूसल कहा जाता। कहा आका हसन मुजतबा को मूसल का मौसम बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा खुशगवार वो मौसम हुआ करता था उस शहर के अंदर में, और आका हसन मुजतबा को ये मौसम बड़ा प्यारा लगता था। तो आप जो है ना एक ईमान अफरोज जो हुजूर का नगमा गाने वाला, ये जरूरी नहीं है कि हुजूर पर नाम निछावर करने वाला या अहले बैत अतहार का गद्दार है, और सकता है, वो भी हो सकता है। इसलिए कि आज के दौर में हमें ईमान को बचाना है। सुने ईमान ताजा हो जाएगा। कहा वही हुजूर का नगमा पढ़ने वाला, वही हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर से और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले। मैं ये नहीं कहता कि आप अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हो, आप ही अहले बैत अतहार के गद्दार हो, नहीं, बल्कि ये सुने कि हम तो ता क़यामत तक और ता जो है आखिरी सांस तक हम अहले बैत अतहार के वफादार रहेंगे और हमारे बच्चों को भी वफादार रखेंगे। लेकिन जो है सही मानों में उन तक ईमान नहीं पहुंचा। ईमान तो लाए थे लेकिन सही मानों में उन तक ईमान पहुंचा नहीं था। हम तो हमारे विरासत में हमें ईमान मिला है, और हमें ईमान इस तरह मिला है कि अगर सैयदों की गुलामी हमारे लिए अगर मिल जाए तो हम जो है फख्र की बात समझेंगे इस चीज को, लेके हमें जो है जन्नत मिलनी है, हमें मोहब्बत करके उनके सदके हमें जन्नत मिलनी है। कहा उन्हीं के सदके वफा करेंगे जन्नत जन्नत पाएंगे, और अगर वफा नहीं करेंगे तो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। हम तो वफादार हैं, हम उन जैसे जालिम नहीं थे, हम तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले थे। कहा मूसल एक शहर है और हसन मुजतबा वहां चंद दिनों के लिए ठहर गए। हुजूर का नगमा पढ़ने वाला, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला, लेकिन उन जालिमों के हाथ वो बिका हुआ था। कहा बताया गया किताबों में लिखा है, कहा वो मूसल शहर के अंदर में हसन मुजतबा, सबसे पहले हसन मुजतबा को अब जहर दिया जा रहा है। अब सुने, कहा वो शख्स ने जो है तरह तरह अंदाज में जो है एक एक करके 3 मरतबा आपको जहर दिया। कितनी मरतबा? यहाँ तक बस न करना, बल्कि आप सुने कि किस कदर उन जालिमों ने जुल्म किया था और आका हुसैन को किस तरह हसन मुजतबा ने ये तरबियत की थी। कहा भाईजान सब्र इस्तिकामत के पैकर बन जाना, और नाना जान का जो है दीन अगर बचाने का वक्त आए तो जो है तलवार को लहरा देना। लेकिन किस कदर जो है जुल्म डाले गए। कहा 3 मरतबा उस जालिम ने जो है जहर हसन मुजतबा को दिया। गौर से सुनना, कहा वो जहर इतना जहरीला न था कि मौत जिससे वाक़ई हो जाए। उसके बाद जो जहर दिया गया था ना वो बड़ा सख्त था, लेकिन अब सुने, कहा वो चौथी बार जहर देने की कोशिश करने लगा। उसने अमीर वक्त को जो है खत लिखा। लिखने के बाद कहा मैंने
नवासा रसूल को 3 मरतबा जहर दे चुका हूं लेकिन मौत नहीं हुई है, कुछ ऐसा जहर भेज दे ताकि जो है उसकी मौत, नवासा रसूल की मौत वाक़ई हो जाए। क्या कहा? खत लिखा गया, अमीर वक्त तक जो है ये खत पहुंचा। खत पढ़ा, बड़ा खुश हुआ, इसलिए कि जालिम बना बैठा था ना, अहले बैत अतहार के गद्दार वो बने बैठे थे। अब सुने, कहा जो है उसने खत तो पढ़ा लेकिन खत की तालीम करते हुए उसने एक ऊंट को तैयार किया और एक शख्स को तैयार किया और एक जहर जो है, ऐसा जहर जो है एक बोतल के अंदर में बंद किया। मैं बताऊंगा वो जहर कैसा जहर, आप सुनेंगे आपके कलेजे दहल जाएंगे। किस कदर उस जालिमों ने जुल्म से थे, जालिमों ने जुल्म सितम डाले थे। कहा एक शख्स को खत लिखा, वो जहर की बोतल दी, एक ऊंट दिया और कहा जाओ और जाकर उस शख्स से दे देना जो नवासा रसूल को 3 मरतबा जिसने जहर दिया। ये लिख कर जो है उसने ये खत लिखा था और लिखने के बाद जो है उसने ये चीजें देकर रवाना की थी। अब सुन ले कि वो जहर कैसा जहर था, बड़ा खतरनाक जहर था और अगर कोई वो पी लेता तो वहीं के वहीं मर जाता। लेकिन जो है किस तरह जो है मदद की थी रब ने, लेकिन ये मदद इसलिए थी कि आपके जुल्मियत पर जो है अल्लाह ने इजाफा करना था, इसलिए कि आपकी मौत कहाँ वाक़ई होने वाली थी, हसन मुज्तबा की। आप सुनेंगे और किस कदर वाक़ई हुई, जो है आपकी शहादत किस कदर हुई। कहा वो जहर इतना जहरीला था कि कहा लिखा गया है कि अगर वो जहर का एक कतरा, क्या एक कतरा अगर जो है उसे नदी के अंदर डाल दिया जाए, सिर्फ एक कतरा, सुने ए मोमिनो सुनो, अगर वो एक कतरा नदी के अंदर डाल दिया जाए तो कहा लिखने वाले लिखते हैं कि उस नदी की तमाम मछलियां उस एक कतरे के बदौलत मर जाए। इतना खतरनाक, एक कतरे से तमाम नदी की मछलियां जो है मर जाए। सोचो तो सही, अंदाजा तो करो, वो एक कतरा अगर पेट के अंदर चला जाए क्या वो इंसान बच सकता है या नहीं बच सकता? कभी भी वो बच नहीं सकता। लेकिन देखिए जुल्मियत पर इजाफा था, इसलिए आका जो है वो आका के वो नवासों की किस कदर रब मदद कर रहा है। कहा जो है लिखा गया कि आका हसन मुज्तबा का एक गुलाम, बड़ा वो गुलाम था। क्या देखते हैं कि वो जो शख्स लेकर जब निकला था एक खत और वो जहर की बोतल ऊंट के साथ जो है वो निकला था, कहा जंगल के बीच पहुंचा। क्या देखता है कि वो जो है वो आका हसन का वो गुलाम, क्या देखते हैं, कहा जो शख्स निकला था वो जहर लेकर निकला था। कहा उस शख्स ने देखा कि एक जंगल के अंदर से एक भेड़िया आया, खतरनाक आया और उसने उस शख्स को मार डाला। जब वो मार डाला ना उस शख्स को, उस भेड़िए ने, तो जो है वो आका हसन मुज्तबा का जो गुलाम था वो ऊंट के पास पहुंचा। क्या देखता है कि वो खत भी लिखा हुआ है, वो जहर भी है और उसके अंदर जो है लिखा हुआ था कि जो है इसको पिला दिया जाए, अगर ये पी लेंगे नवासा रसूल तो फिर वो बचेंगे नहीं, बल्कि उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। अब यूं मौत वाक़ई नहीं होनी थी हसन मुज्तबा की। आगे भी सुने, कहा किस कदर जो है उस वक्त जो है 3 मरतबा जहर तो मिल चुका था, लेकिन हसन मुज्तबा जो है उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई थी, शहादत वाक़ई नहीं हुई थी। उन्होंने ये ख्याल किया कि कहा चलो मैं चलता हूँ नाना जान के जो है मदीना मुनव्वरा में जो है जाता हूँ। वापस जो है आका हसन मुज्तबा जो है आए और जो है मदीना मुनव्वरा में ठहरे, लेकिन उन जालिमों ने ये अहद कर लिया था, ये सबब बना लिया था, जो है मरवान ने ये ख्याल कर लिया था कि जो है नवासा रसूल को जो है जहर देकर कत्ल किया जाएगा, उन्हें शहीद किया जाएगा। और ये मरवान का ख्याल तो था, लेकिन आका ने फरमा दिया था, कहा मेरा एक बेटा यानी एक मेरा नवासा जो है वो जहर के बदौलत शहादत को नोश फरमाए
जाए मेरा शहजादा, एक नवासा जो है तलवारों के साए में इस दुनिया से रुखसत होगा और शहादत पाएगा। ये नाना जान ने तो पहले बता दिया था, लेकिन उन जालिमों को पता नहीं था, लेकिन वो सब्र इस्तकामत बतानी थी, वो सब्र इस्तकामत के जौहर को बताना था। कहा उस मरवान ने जो है एक बांदी को खरीदा। अब सुने जो है, अब जहर देने के अंदाज देखे। कहा मरवान ने एक बांदी को खरीदा, खरीदने के बाद जो है उसे कहा जाओ और हसन मुज्तबा को खजूर के अंदर जो है जहर मिला दो और उन्हें खिला दो। आप लोगों से गुजारिश है, कमेटी वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को खामोश करवाएं, इसलिए कि शहादत आका हसन मुज्तबा में पढ़ने लगा हूँ। कमेटी वालों से इल्तिजा करता हूँ जो है इन बेटों को जो है इन बच्चों को आप कहें, कुछ कहें, ये खामोश रहें, इसलिए कि हम जो है ईमान इन्हीं को देने वाले हैं, ईमान इन्हीं को मिलना है। और हमने जो ईमान पाया है जो है हमारे बच्चों में हमें उड़ेलना है, हमें उन्हें खबर करनी है। आप लोग जो है इन्हें बताएं कि हमें जो है जज्बा किस अंदाज में रखना है। आप लोग जो है इन्हें बताएं कि जो है नवासाए रसूल ने किस किस अंदाज में उन्होंने जुल्म सितम सहे। और हम जो है आज हम किस्सा कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि दास्ताने करबला को सुनाने और आका हसन मुज्तबा की जो है शहादत को सुनाने के लिए आए हैं। एक मर्तबा जी लगा के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा और मेरा दिल ये कब गवारा करेगा कि नवासा रसूल की शहादत हो, और जो है हमारे लिए हम जो है उसे गौर से न सुने। ये वो शहादतें हैं कि दिल जो है कांप जाता है, रूह जो है कांप जाती है, आंखें नम हो जाती है। अरे हुजूर जिससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, अरे कांधों पे बिठाकर, एक कांधे पर हसन मुज्तबा को, एक कांधे पर आका हुसैन को बिठाकर वो मदीने की गलियों पर जो है मदीने की गलियों में घुमाया करते, और देखने वाले देखते तो कहते कहा ये सवारी कितनी अच्छी है, कहा ये न देखो ये सवारी कितनी अच्छी है, ये देखो कि सवार कितने अच्छे हैं। ये देखो कहा वो मदीने की गलियों में उन शहजादों को घुमाया जा रहा था। ऐ लोगों, तुम्हारे दिल इतने पत्थर तो नहीं है ना, ये शहादत को सुने और इस शान से सुने कि अपने बच्चों में जो है दिल से मोहब्बत से ये मोहब्बतें उड़ेले कि आका हुसैन ने, आका हुसैन ने, आका हसन ने किस कदर जो है जुल्म सितम दाकर अपने बच्चों की तरबियत की थी, किस कदर जो है मज़हब इस्लाम को जो है बुलंदियां दी थी। कहा सुने, जब 3 बार जहर हो गया ना, चौथी मर्तबा जहर जो है आपको दिलाया गया, मरवान ने एक लौंडी खरीदी। एक लौंडी खरीदने के बाद जो है वो जो है कहा कि उसे खजूर में जो है आका हसन मुज्तबा को जहर दिया जाए। कहा वो बांदी आई, वो लौंडी आई, हसन मुज्तबा को खजूर के अंदर में जो है जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया गया। अब जो देखो कि अब जो जहर था ना बड़ा सख्त था, बड़ा शदीद था, और वाकई ये जहर इतना सख्त था कि उससे मौत वाक़ई हो सकती थी। लेकिन जो है देखे कि किस कदर जो है नाना जान ने अपने नवासों की जो है मदद की थी, किस कदर, लेकिन इम्तिहानात से गुजरना था, ये बताना था उम्मतियों को कि मेरे नवासों ने किस कदर जो है जुल्म सितम उठाए थे। कहा आका हसन को जो है हसन मुज्तबा को चौथी मर्तबा खजूर में जहर दिया गया ना, तो आका हसन ने गुलामों को बुलाया, कहा अब मुझसे जो है ये जिस्म में बर्दाश्त नहीं हुआ जाता, लगता है कि मुझे अब जो है मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। कहा जाने से पहले नाना जान के जो है रोज़े अनवर पर ले जाया जाए और मैं जाकर जो है नाना जान को फरियाद करूंगा। कहा कोई सुकून नहीं है नाना जान, आपके उम्मतियों में जो है मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। कहा मदीना मुनव्वरा में भी सुकून नहीं मिल रहा है, और मूसल जैसे शहर में कि जिसको आप पसंद फरमाते थे, कहा वहां भी बेकरार रहता हूँ। नाना जान के बारगाह में जो है आका हसन मुज्तबा आए, अरीजा पेश किया। नाना जान ने कहा बेटा, आवाज आई, कहा बेटा सब्र करो। कहा
इमाम हसन मुज्तबा को एक जो है कह हुई यानी उल्टी हुई तमाम का तमाम जहर का जो है असर था वो बाहर निकल गया। आका हसन मुज्तबा तंदुरुस्त सेहतमंद हो गए। लेकिन देखो उन जालिमों ने सांस न ली, जो है उस मरवान के जो है चेलों ने जो है सांस न ली, बल्कि जुल्म पर जुल्म करते रहे। कहा चौथी मर्तबा तो हो गया, अब पांचवी मर्तबा हो रहा है। कहा एक लोनी को फिर वापस खरीदी गई और कहा शहद के अंदर जो है उसे जो है जहर मिलाकर हसन मुज्तबा को दे दिया जाए। ये सुने और गौर से सुने किस कदर जो है जुल्म किए गए। कहा शहद के अंदर मद के अंदर में जो है जहर मिलाया गया और मिलाने के बाद जो है वो जहर भी इतना जहरीला था कि जो है उससे मौत वाक़ई हो सकती थी। फिर दोबारा आका के पास आका की बारगाह में नवासा रसूल पहुंचता है। कहा वो रोज़ा अनवर पर जाकर फरियाद करने लगे, अर्ज करने लगे, नाना जान आपकी उम्मत जो है ये चैन और करार लेने नहीं देती। कहा फिर से जो है दोबारा कह की और जो है उल्टी हुई तमाम का तमाम जहर जो है बाहर निकल गया। 5 मर्तबा जहर वाक़ई हो गया, 5 मर्तबा जहर वाक़ई हुआ। आका हसन मुज्तबा अभी तंदुरुस्त हो गए। आका हसन मुज्तबा ने सोचा कि मदीना मुनव्वरा में जो है अब मुझे नहीं रहना, बल्कि जो है फिर वापस जो है मूसल चला जाता। कहा उसकी आबो हवा, पहले कहा था ना कि उसकी आबो हवा आका हसन मुज्तबा को बड़ी प्यारी थी। वहाँ वफादार भी थे, गैर वफादार भी थे, गद्दार भी मौजूद थे। सुनो सुनो ऐ लोगों, जो है वफादार तो वफादारी कर गए, लेकिन गद्दारों की गद्दारी देखे। कहा वो मूसल जो है आका हसन मुज्तबा वापस जो है चले और जो है मूसल की जामा मस्जिद में जो है आप जो है कयाम किया। जो है आका हसन मुज्तबा जो है वो खुतबा देते और इस शान के साथ खुतबा देते कि लोग जो है वो आशिक लोग, हुजूर पर फिदा होने वाले लोग, हुजूर पर कलमा पढ़ने वाले जब जो है वो खुतबे को सुनते, आका हसन मुज्तबा को कहते, कहा आपके नाना जान की हमें याद आ जाती है। आप जब खुतबा पढ़ते हैं आपके नाना जान की याद आ जाती है। कहा इस कदर जो है आप खुतबा पढ़ते थे। लेकिन देखो सुनो सुनो उसके दरमियान में एक जो है नाबीना बुढ़ा मौजूद था जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। नाबीना था लेकिन अकीदे का खराब था। अब सुने, अकीदे का खराब था, वही आगे बैठता, सबसे आगे बैठकर क्या करता, आका हसन मुज्तबा खुतबा देती ना तो वो सारों कतार रोता, सिसकियां भरता और रोता, इस कदर रोता कि ये जाहिर करता कि वाकई वो सैयदों का गुलाम है, वो वाकई नवासा रसूल का गुलाम है। ये वो जाहिर करता था। अब देखे उसकी नफरतें दिलों में। कहा वो जाहिर तो करता था लेकिन उसने ये दिल में ख्याल किया था, वो नाबीना था, अंधा था, देख नहीं पाता था, लेकिन किस कदर जो है अहले बैत पर जुल्म करते। अब छठी बार जो है जहर दिया जा रहा है। सुने गौर से, आप जो है अंधेरे में हो और कहीं आपने न सुना हो तो सुन ले। आका हसन मुज्तबा की शान को सुने और किस कदर उन जालिमों ने जुल्म किया था। कहा वो नाबीना, उसके पास एक लाठी थी, छड़ी थी और उस छड़ी की नुकीली जो छड़ी थी उस नोक के अंदर में उसने इतना जहरीला जहर को बेवस्त कर दिया था, इतना उसने उसमें बंद कर दिया था और ये ख्याल किया था कि मैं नवासा रसूल को जो है इस जहर के अवज़ जो है उनकी शहादत को वाक़ई करूंगा। अब सुने, कहा वो आशिक, इश्क का दावा करने वाला, अहले बैत अतहार से आज भी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और ये जानते हैं वाकई अहले बैत से मोहब्बत की जाएगी, जन्नत भी मिलेगी और नाना जान के हाथ से जामे कौसर भी मिलेगा। ये हमारा अकीदा है ना। हम मानते हैं ना कि रोज़े क़यामत के दिन वो कौसर पर जो है खड़े लेकर जो है अपने उम्मतियों को वो जाम देंगे और ऐसा जाम होगा
کہ پھر وہ جام ملے گا، وہ آب کوثر ملے گا، تو پھر وہ جو ہے انہیں پیاس نہ لگے گی، پیاس بجھ جائے گی، لوگ عطش العطش العطش کرتے رہیں گے، لیکن جو غلامان اہل بیت ہوں گے، جو نبی پر کلمہ گو ہوں گے، کہا انہیں وہ جام کوثر ملے گا، وہ کوثر کا جام ملے گا۔ اب سنیں، کہا وہ عشق کے دعوے کرنے والے، جو محبت کرنے والے تو محبت کرتے ہیں، واقعی ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور آج جو ہے ہم محبتوں کی خاطر یہ بڑا مجمع ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم حسین کا نغمہ، حسن مجتبیٰ کا نغمہ گاتے ہوئے، ہم غلامیوں کی ثبوت پیش کرتے ہوئے ہم یہ محفلوں میں بیٹھے ہیں، لیکن جو محفل میں نہیں آئے ہیں انہیں ہم غدار نہیں کہتے، لیکن واقعی جو حضور کی آج سے محبت نہیں کرتے وہ ضرور غدار ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ دیکھیے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، کس قدر اندھا تھا، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن نواسوں پر ظلم دیکھے کس قدر کیا جا رہا ہے، کس قدر جو ہے ظلم ستم کیا جا رہا ہے۔ اب سنیں، کہا وہ اپنے پاس چھڑی رکھی تھی نا، اس نے زہر کو بند کر دیا تھا چھڑی کے اندر میں۔ کہا ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ موصل کی جامع مسجد سے خطبہ دے کر جب باہر نکلے نا، تو اس وقت غلاموں کا جو ہے ایک ہجوم تھا، اور جو ہے ہجوم نواسۂ رسول کو گھیرے ہوا تھا، اور جب دیکھا کہ وہ نابینا، وہ اندھا شخص جو اہل بیت اطہار کی محبتوں کا دعویٰ کرنے والا، کہا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، جب نواسۂ رسول آقا حسن مجتبیٰ باہر نکلے نا، تو وہ جو ہے یہ کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا کون ہے جو اہل بیت اطہار کا وفادار ہو، ہٹ جاؤ اے شخصو، ہٹ جاؤ اے نبی کے نواسوں کو چاہنے والے، ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں بھی نبی کے نواسوں کا چاہنے والا ہوں۔ کہا مجھے بھی حسن مجتبیٰ سے جو ہے ملاقات کرنے دو، وہ جو ہے نابینا جو ہے آنے لگا۔ آقا حسن مجتبیٰ نے کہا جگہ کر دو، اس نابینے کو آنے دو۔ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے حسن مجتبیٰ کے سینے سے جو ہے وہ لگنے لگا۔ یہ وہ سینہ تھا جس کو جو ہے حضور چوما کرتے تھے، جس کو حضور سونگا کرتے تھے، اور وہ پیشانی تھی کہ جس کو خود رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے میرا چہرہ اگر دیکھنا ہو تو وہ حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے، میرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ حضور کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نواسے کے چہرے کو دیکھ لو، گویا میرے چہرے کو وہ دیکھ لے گا۔ کہاں وہ چہرہ، وہ سینہ جو ہے سینے تک مشابہ تھی نا، وہ سینہ ملا تو تھا، لیکن غداریاں دیکھو، جو ہے بے وفائیاں دیکھو، ان ظالموں کی بے وفائیاں دیکھو۔ سینہ ملنے کے بعد ہمارے یہاں تو اگر عشق ہو تو سینہ مل جائے تو سنور جاتی ہے دنیا، سنور جاتی ہے آخرت، سنور جاتی ہے جو ہے قبر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سینے مل جائے تو ہماری زندگی سنور جائے، لیکن یہ ظالم تھے، ظالم جن کو جو ہے ظلم ستم ڈھانا تھا، کہا سینے سے ملا تو صحیح، لیکن وہ نابینا نے کیا کیا، کہا وہ زہریلی چھڑی تھی نا، وہ چھڑی کو آپ کے جو ہے حسن مجتبیٰ کے پیٹ کے اندر میں زور سے جو ہے چبو دیا۔ جب وہ چبونا تھا، زہر کا اثر جو ہے پگ میں جو ہے جاری ہونے لگا، اس قدر جاری ہونے لگا کہ آپ کے پورے پگ میں جو ہے آپ کے پیر میں جو ہے وہ زہر کا اثر ہونے لگا، اور اس قدر اثر ہوا کہ جو ہے آپ کی نسوں میں بھی وہ زہر جو ہے پیوست ہو گیا، نسوں میں وہ زہر دوڑنے لگا۔ شاید یہ بات آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، کہا سنو، کہا جب وہ زہر جو ہے دوڑنے لگا، شاکان اہل بیت جو ہے غصے میں آ گئے، لیکن وہ نواسۂ رسول تھا، صبر کا پیکر بنا تھا، کہا کوئی بات نہیں، کہا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس جو ہے نابینے کو، اس کو چھوڑ دو، کہا اس پر کچھ ظلم ستم نہ کرو اور اسے نہ قتل کرو۔ لیکن جو ہے عبداللہ بن عباس جو ہے انہوں نے اسے قتل کیا، لیکن سنیں جب وہ زہر کو کس انداز نکالا گیا، کہا بڑے طبیبوں کو بلایا گیا، اور جو ہے
طبیبوں نے آقا حسن مجتبیٰ کو جو ہے ایسی دوائیاں دی اور ایسی دوائیاں لگائی کہ آپ کے پیر کے اندر سے زہر نکلتا گیا، آپ کی پگ میں پیر میں جو ہے نسوں میں جو ہے وہ زہر سرایت کر گیا تھا نا، وہ زہر بھی نکل گیا، آپ جو ہے تندرست ہو گئے۔ 14 دن کے بعد حسن مجتبیٰ موصل میں رہے 14 دن تک۔ اب جو ہے آقا حسن مجتبیٰ اب جو ہے ظلم ستم بھی کتنا سہا جائے، ظلم ستم بھی کتنا جو ہے برداشت کیا جائے، لیکن وہ تو صبر کے پیکر ہے۔ یارو سنو سنو، کہا وہ صبر کے پیکر تو بنے تھے، لیکن اس قدر جو ہے کائنات میں لاؤ نا، اس قدر کون صبر کرتا ہے؟ بتاؤ نا اس قدر کون جو ہے ظلم ستم کرنے کے بعد صبر کرتے ہیں؟ کہا یہ نانا جان نے تربیتیں دی تھی، کہا میں بیٹے جو ہے صبر کرنا، اے نواسو صبر کرنا۔ 6 مرتبہ زہر دے دیا گیا تھا۔ اب حسن مجتبیٰ جو ہے ہار چکے تھے، کہا اب موت ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، کیوں نہ موت جو ہے آقا کے جو ہے نانا جان کے اس مدینہ میں موت واقع ہو۔ کہا اس نانا کے پہلو میں کیوں نہ آرام فرمائیں، کہا کیوں نہ ہم پر جو ہے ظلم ستم تو ڈھائے جا رہے ہیں، اب جو ہے آخری مرتبہ اب کس انداز میں زہر دیا جا رہا ہے؟ کہا سنو، کہا جب آقا حسن مجتبیٰ نے یہ ارادہ بنایا، کہا موصل سے جو ہے آپ چلے اور مدینہ منورہ میں جب آئے نا، آنے کے بعد چند لمحہ آپ ٹھہرے، چند دن ٹھہرے، کیا دیکھتے ہیں کہ پھر واقعی جو ہے اس مروان نے پھر جو ہے اپنا ظلم ستم شروع کیا، اور جو ہے اس انداز میں زہر دیا گیا کہ آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ کہا کس قدر دیا گیا؟ کہا ایک مشکیزہ ہوتا ہے نا، مشکیزہ، اس وقت جو ہے ایک ایسی چیز ہوا کرتی تھی کہ جو ہے اس کو بند کرنے کے بعد مہر لگا دی جاتی تھی، مہر لگانے کے بعد جو ہے لوگ یہ تصور کرتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو سادی بھاشا میں اور سیدھی بھاشا میں بتاؤں نا کہ جو ہے ہم پانی کی بوتل لیتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو ہے وہ بند کی جاتی ہے، جو ہے اس کے اوپر سفید جو ہے پلاسٹک لپٹا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہے، اسے کوئی جو ہے کسی نے اسے کھولا نہیں۔ کہا اسے کوئی کھولتا نہیں ہے، جب وہ پلاسٹک جو ہے توڑا جائے اور اسے کھولا جائے تو ہم مانتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہم دل میں خیال کرتے ہیں نا، یہ مانتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی جو ہے معمول دیکھیں، کہا وہ مشکیزے کے اندر جو ہے کپڑا باندھا جاتا تھا، سفید کپڑا جو ہے اس مشکیزے کے اندر باندھا جاتا تھا، اور باندھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک مہر لگاتے تاکہ لوگ سمجھتے کہ اسے کسی نے کھولا نہیں، رات کی تاریکی میں کسی نے کوئی چیز ڈال تو نہ دی۔ لیکن ظلم دیکھے کس قدر جو ہے ظلم کیا تھا۔ کہا جب وہ زہر دینا تھا نا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مہر لگائی ہوئی ہے اور جو ہے اسے بند کیا گیا ہے، لیکن اگر اسے توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا تو واقعی حسن جو ہے جان جائیں گے کہ یہ جو ہے توڑا گیا ہے، اور جو ہے اسے پانی نہ پئیں گے۔ لیکن سنیں کیا کیا گیا، زہر کی جو ہے زہر کے جو ہے باریک باریک زہر کو جو ہے پیسا گیا، پیسنے کے بعد جو ہے اتنا باریک بنایا کہ جو ہے اس کپڑے کے اندر ڈالا جائے نا تو سل بھی جو ہے وہ نہ ٹوٹا جائے اور وہ مہر بھی نہ ٹوٹے، بلکہ وہ جو ہے اس کپڑے سے جو ہے نکل کر وہ پانی میں چلا جائے۔ اس قدر جو ہے باریک کر دیا گیا تھا وہ زہر، اور وہ زہر کیسا تھا، جو ایک قطرہ ڈالنا تو مچھلیاں مر جائے، لیکن یہاں مچھلیاں نہیں مرتی۔ اب سنیں، اب جو ہے آقا حسن مجتبیٰ پر جو ہے ظلم ہوا اور آخری زہر دیا گیا۔ آپ کا سینہ لرز جائے گا، آپ کا سینہ کانپ جائے گا۔ کہا آپ جو ہے تہجد کی نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہوئے، حسن مجتبیٰ جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا، اس مشکیزے کو دیکھا، واقعی کچھ تو نہیں نظر آیا، بلکہ جو ہے اس پانی کو جو ہے ایک گلاس کے اندر نکالا، جو ہے اس برتن میں نکالا، نکالنے کے بعد حسن مجتبیٰ نے جیسے پینا تھا، جیسے ہی وہ پیا نا
تو آقا حسن مجتبی کے جو ہے جسم کے اندر جو ہے جیسے ہی وہ پانی جانا تھا اتنے جو ہے وہ کٹنے لگے، وہ جو ہے الٹیاں جو ہے لوہی لہان کی ہونے لگی، جو ہے خون کی الٹیاں ہونے لگی، اتر جو ہے باہر آنے لگے۔ آقا حسن مجتبی نے آواز لگائی، اے حسین ذرا میرے پاس آؤ، کہا اے میری بہن زینب، کہا میرے پاس آؤ، جو ہے زینب سلام اللہ آئے اور جو ہے آقا حسین آئے، کہا اے میرے بھائی تمہارے بھائی کی خبر لو، اس لیے کہ جو ہے 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، صبر استقامت کے پیکر آپ کا بھائی بن چکا تھا، لیکن جو ہے آج اس زہر نے ایسا صلاحیت کی ہے، اسی صلاحیت کی ہے، کہا اب زہر سے جو ہے آقا حسن جو ہے بچ نہیں سکتے، کہا آپ کا بڑا بھائی اب یہ زہر پینے کے بعد جو ہے بچ نہیں سکتا۔ کہا آقا حسین نے جب یہ جو ہے دیکھا نا، واقعی آقا حسین کو بھی لگا کہ اس مشکیزے کے اندر کسی نے زہر نہیں لگایا، اس لیے کہ جو ہے مہر ویسے کے ویسے تھی، کچھ نہ کچھ تھا نہیں۔ کہا آقا حسن نے جو ہے کہا جیسے ہی آقا حسین نے اس مشکیزے کو لیا اور کہا کہ بھائی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا واقعی زہر اس میں بھی لایا گیا ہے۔ کہا جب آقا حسین نے جو ہے مشکیزے کو پکڑنا چاہا، حسن مجتبی نے اس مشکیزے کو لیا اور لینے کے بعد جیسے ہی زمین پہ دے مارا، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین دیکھتے ہیں جو ہے ماں زینب دیکھ رہی ہے کہ جیسے ہی وہ مشکیزہ زمین کے اوپر آتا ہے، وہ جب ٹوٹتا ہے نا تو اس وقت جو ہے زمین پھٹ جاتی ہے، اس زہر کے عوض سے، اس زہر کے وجہ سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ واقعی اس جو ہے پانی کے اندر زہر ملایا گیا۔ اب حسن مجتبی کہتے ہیں میرے گھر والوں کو بلایا جائے، حسن مجتبی کہتے ہیں میرے بھائی حسین جو ہے اپنے گھر والوں کو بلا لو، اس لیے کہ اب جو ہے آپ کا بھائی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے تھال منگوائے گئے اور جو ہے تھال کے اندر جو ہے آقا حسن مجتبی جب الٹی کرتے تو جو ہے خون کی الٹی ہوتی، اتیڑے جو ہے کٹ کے جو ہے باہر آتے، جو ہے تھال کے تھال جو ہے بھر گئے۔ بھرنے کے بعد جب جو ہے آقا حسن نے جو ہے اس انداز میں جو ہے جام شہادت نوش فرمائی، لیکن اس سے پہلے حسین سے کہنے لگے اے بھائی اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں اور جو ہے میری موت واقع ہو جائے، میری شہادت واقع ہو جائے تو تم صبر کے ساتھ رہنا اور جو ہے صبر استقامت کے پیکر بنے رہنا، اس لیے کہ جو ہے ایک میری نصیحت سن لینا۔ کہا وہ نصیحت کیا تھی؟ کہا میری نصیحت یہ ہے کہ اگر میری موت واقع ہو جائے نا تو نانا جان کے جو ہے مزار اقدس پر جو ہے دائیں جو ہے پہلو پر مجھے لیٹا دینا، یعنی کہ مجھے دفن کر دینا، اور اگر جو ہے امت محمدیہ اگر جو ہے نانا کے کلمہ پڑھنے والے اگر اعتراضات کرے اور فتنہ فساد پھیلائے تو جو ہے آپ جو ہے اسے چھوڑ دینا اور جو ہے مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں جہاں امی جان سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آرام فرما رہی ہے، کہا وہاں مجھے دفن کر دینا۔ کہا جب امام حسن مجتبی کی جب موت واقع ہوئی نا، آپ جام شہادت پر جو ہے منصب پر فائز ہوئے تو جو ہے آپ نے جو نصیحت کی تھی حسین نے اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اب جو ہے کس قدر جو ہے اس ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے جو ہے زہر دیا تھا، اے حسین تم پر جو ہے قربان، کہا بڑا بھائی جو ہے اس دنیا سے جا رہا ہے، کہا وہ جنازہ اب وہ مدینہ کی گلیوں سے نکل رہا ہے جو جس وقت جو ہے نانا جان جو ہے اس گلیوں سے گزارا کرتے تھے اور جو ہے بڑا پیار کیا کرتے تھے، جو ہے وہ اس قدر جو ہے اس شان سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلا کرتے اور جو ہے عاشق لوگ جو ہے دیکھ کر حسن مجتبی کو دیکھ کر جو ہے کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن جو ہے ان ظالموں نے جو ہے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ نواسہ رسول ہے کہ
किस कदर जो है आका पर जो है उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। कहा नाना जान की वो कब्र लर्ज जाएगी। कहा वो सोचा नहीं था, ये समझा नहीं था कि जो है किस कदर जो है नाना जान अपने जो है नवासों से बेपनाह इश्क करते हैं। यहाँ मदीना की गलियों से, मदीना मुनव्वरा की गलियों से हसन मुज्तबा का जनाजा निकल रहा है। अब जो है जनाजा निकल रहा है। उन जालिमों ने यहाँ तक तो बस न किया था बल्कि जो है तीरों से छल्ली कर दिया। वो जनाजा जो है तीरों से छल्ली कर दिया। और यहाँ के बस नहीं बल्कि जो है उस जनाजे के अंदर से जो है कफन के अंदर से खून बाहर निकलने लगा। और जो है हसन मुज्तबा को दूसरा कफन दिलाया गया। जब दूसरा कफन पहनाया गया और जो है आका के रोज़े अनवर पर जो है हसन मुज्तबा का जो है जनाजा लाया गया। लेकिन वो जालिम थे, जालिम कहा जुल्म सितम के पहाड़ बनकर जो है खड़े हो गए और आका हुसैन से कहने लगे हम जो है हुजूर के पहलू में सोने नहीं देंगे। अगर तुम्हें दफनाना है तो जाओ मुसलमानों के आम कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी में जाकर जो है दफना दो। जब इतना कहना था जो है आका हुसैन ने कहा ऐ मेरे नाना जान के वफादारों, ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम कलमा पढ़ने वाले तो हो लेकिन जो है मुझे ये गुमान न था कि तुम में गद्दार भी मौजूद थे। लेकिन जो है मेरा बड़ा भाई जो मेरा आका मेरा इमाम ये कह गया था, अगर वो कह के नहीं जाता तो आका हुसैन फरमाते हैं कि बाबा जान की तलवार तो जो है मैं लहरा देता और मैं जब लहराता ना तो तुम्हें फिनारे जहन्नम पहुंचा देता। लेकिन मैंने वादा किया था मेरे इमाम से हसन मुज्तबा से, कहा मैं कोई भी फितना न फैलाऊंगा और जो है वो लोग कहेंगे इस अंदाज में चलते हुए जो है मैं जो है कब्रिस्तान में दफन करूंगा। अब जो है आका हुसैन ने जो हसन मुज्तबा ने कहा था ना उस शान के साथ जो है आपको जन्नतुल बकी में जो है मदफन किया। और मदफन के बाद करने के बाद जो है आप पर बड़ा जुल्म सितम ढाया गया। इसलिए तो जो है वो सब्र इस्तकामत के पैकर बने थे। अब सुने किस तरह वो सब्र इस्तकामत के पैकर बने थे। कहा कुर्सी छोड़ी थी, हुकूमत छोड़ी थी, किसकी खातिर? नाना जान की उम्मत की खातिर। कहा कुर्सी को छोड़ दिया और तख्तो ताज को छोड़ दिया, नाना जान की उम्मत को छोड़ दिया, नाना जान की उम्मत को जोड़ दिया, तख्तो ताज को छोड़ दिया। किसकी खातिर? अमीर माविया, हजरत अमीर माविया ने जो है ये हसन मुज्तबा से ये जो है बातें की थी। ये जो है कुछ जो है बातें करके जो है ये इकरार किया था कि जो है आप जो है दो गिरोह में सुलह करवा ले, अगर आप जो है मान जाएंगे ना तो सुलह हो जाएगी, मुसलमान एक दूसरों से लड़ेंगे नहीं। और ये बात तो आका ने पहले कह दी थी, ये बात तो आका ने पहले कह दी थी। कहा मेरा हसन जो है ना वो सैयद है, सैयद। कहा वो एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों के दो गिरोह जब लड़ पड़ेंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे, उस वक्त जो है मेरा हुसैन मेरा हसन सैयद है वो दोनों गिरोह में जो है सुलह करवाएगा। कहा वो खिलाफत को छोड़ेगा, कुर्सी को छोड़ेगा और जो है मेरी उम्मत की खातिर जो है उम्मतों को जोड़ देगा। हाँ वो वक्त भी आया और हसन मुज्तबा ने जो है कुछ अहद लेकर जो है अमीर माविया को, हज़रत अमीर माविया को जो है वो सल्तनत दे दी। और जो है आज हम जिसे यजीद पलीद कहते हैं ना वो अमीर माविया का ही बेटा था। वो शैतान इतना बड़ा शैतान था कि जो है शराब जिसके यहाँ आम था, बदकार था, जालिम था और हर तरह के जुल्म, हर तरह की जो है नहूसत उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन उनका बाबा हजरत अमीर माविया ने जब जो है इस दुनिया से जब वो रुखसत हुए, हसन मुज्तबा भी रुखसत हुए, लेकिन जो है हसन मुज्तबा जब इस फानी दुनिया से जो है शहादत को नौश फरमा गए ना, उस वक्त आका हुसैन अकेले हो गए थे, अकेले हो गए थे। और जो है
इस कदर अकेले हुए, बहुत जुल्म सितम ढाया। ये आप न समझे कि जो है सिर्फ करबला में जो है जुल्म सितम ढाया गया। करबला में तो इम्तिहान था। 7 मुहर्रम से जो पानी बंद किया था, का ये पानी बंद होना और प्यासे रहना, ये तो नवासाए रसूल ने पहले सीख लिया था। अगर जो है आका हुसैन जो है ये जो है फरिश्तों को, पानी के फरिश्तों को नहर फुरात को हुक्म देते, वो नहर फुरात आका हुसैन के कदमों में आ जाती। ये हुसैन प्यासे न थे, बल्कि हुसैन ने जो है प्यास से लेकर जो है उम्मत मोहम्मदिया को जो है नाना जान की उम्मत को ये जो है दर्स दिया। आज जब भी जो है मज़हब इस्लाम पर आँच आ जाए तो अपने वजूद को जो है उभारो, अपने खून को ललकारो। ललकारने के बाद जो है खड़े हो जाओ और जो है नाना जान की जो है उम्मतियों की मदद करो। उनसे जो है उनके जो है शाना बा शाना खड़े होकर जो है उनका मुकाबला करो, जो है ये दर्स दे के गए। लेकिन आज जब हमारा मोमिन भाई एक दूसरा जो है दूसरे मोमिन भाई से जो है झगड़ता है तो हम बड़े खुश होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है आका ने तो ये दर्स दिया था कि अगर मोमिन के दिलों को जोड़ दे, अल्लाह उससे बहुत बड़ा बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, बड़ी प्यार फरमाता है। भाइयों के दिलों को जो है जोड़ दे तो अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। कहा जोड़ने का नाम ईमान रखा गया है, तोड़ने का नाम ईमान नहीं है। जुल्म सितम का नाम ईमान नहीं है, बल्कि जो है ये दर्स देते गए और ये बतलाते गए कि वाकई जो है हमें दर्स मिला है, ये आका हुसैन का सदका है। बहुत जुल्म सितम ढाए, बहुत तकलीफें दी। आपने सुना ना हसन मुज्तबा को किस कदर जो है जुल्म सितम ढाए गए, किस कदर जो है तकालीफ दी गई और किस कदर जो है आप पर जुल्म सितम किए गए, जो है आपसे पहले जो है जुल्म सितम किए गए। और यहाँ तक के मदीना मुनव्वरा, वो मदीना कि जिसके अंदर जो है नवासाए रसूल ने जिंदगी को काटी थी, जिसके अंदर 55 साल की जिंदगी, जिसके अंदर 55 साल की उम्र गुजारी थी। अरे वो जो है मदीना मुनव्वरा कि जिसको जो है आका बेपनाह मोहब्बत फरमाते, आका हुसैन फरमाते हैं कि मदीना वो मदीना है जिसके अंदर आका आराम फरमाए। कहा वो मदीना जब वो छूटने वाला था ना, जो है आओ अस्किया और जो है आओ सारी के साथ हमारे दिल रोने लगेंगे, तड़पने लगेंगे। किस कदर जो है नवासे रसूल पर जुल्म सितम ढाए गए। और जो है ये कहते हुए जब आका हुसैन जब रुखसत हो रहे थे ना, इंशाअल्लाह हम सुनेंगे किस कदर जो है उन पर जुल्म सितम ढाए गए। और जो है मदीना मुनव्वरा में जब आप रहे तो आप पर कितने खुतूत आए और किस कदर जो है आप पर जो है तकालीफ जो है डाली गई। और यहाँ तक के हसन मुज्तबा जब इस फानी दुनिया से रुखसत हुए ना, तो उस वक्त जो है आपको बहुत नसीहतें की थी कि भाईजान जो है सब्र का जो है पैमाना अपने आप रखना, सब्र इस्तकामत रखना, इसलिए कि जो हमें दर्स दिया है उसी पर हमें चलना है, उसी पर जो है हमें गुजरना है। हमारे बच्चों को भी ये दर्स मिलना चाहिए, हमारे जो है खानदान वालों को भी ये दर्स मिलना चाहिए। ये जानते थे कि जो है ये सुर्ख जो चेहरा हुआ था, नाना जान ने ये खबर तो दी थी ना कि जो है एक बेटे का चेहरा जब सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि उस पर जो है जहर का असर वाक़ई हो चुका है और शहादत मिलने वाली है। कहा मेरे एक बेटे को जो है जहर देकर जो है शहादत मिलेगी और एक बेटे को जो है तलवारों और जो है नेज़ों के और तीरों के साए में मौत मिलेगी और शहादत जो है जाम पाएंगे। कहा आका हुसैन को जो है, आका हसन को जो है आका ने जो है ये बतला दिया था, कह दिया था उम्मुल फज़ल जो है ये उम्मुल फज़ल जो है हुजूर की चची थी। कहा बता दिया गया था, कहा जब जो है चेहरा सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि जो है हसन मुज्तबा अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और जब जो है एक जो है मिट्टी लाई गई थी, आपने सुना होगा, कहा वो मिट्टी जो है
حضرت اسما کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے ام الفضل تمہاری زندگی برقرار رہے گی اور تم دیکھو گی کہ جو ہے وہ مٹی جو ہے لال سرخ رنگ کی ہو جائے گی، سمجھ لینا میرے حسین پر ظلم ستم شروع ہو گئے ہوں۔ کہا اس وقت جام شہادت جو ہے وہ میرا حسین جو ہے پا لے گا۔ کہا یہ خبریں تو پہلے مل چکی تھی، یہ خبریں تو پہلے بتا دی گئی تھی۔ کہا جو ہے یہ جانتے تھے، نانا جان بھی جانتے تھے، نواسے بھی جانتے تھے، لیکن جو ہے لوگوں یہاں غور کریں، یہاں دیکھیں اور سنیں۔ کہا یہ خبر تو تھی، پھر بھی جو ہے نانا کے ان نواسوں نے جو ہے ظلم ستم کو کیوں سہا، کیوں تکلیف کو برداشت کیا؟ کہا وہ ہاتھ پھیلا کر جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، کیا رب ان کی باتوں کو ٹالتا؟ نہیں ٹالتا۔ آج کا سید اگر رب کی بارگاہ میں التجا کرے، دعا کرے، تو اللہ فرماتا ہے حضور کی آواز کے صدقے اللہ اس کی جو ہے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہا یہ سنو اور غور سے سنو، کیا عام انسان کی موت واقع ہو تو جو ہے آسمان لرزتا نہیں ہے، کانپتا نہیں ہے۔ اے مومنوں ذرا غور تو کرو، ان ظالموں نے جو ہے آقا حسن پر ظلم کیا اور زہر دے کر جب جو ہے انہیں شہید کیا، کس قدر جو ہے وہ شہید ہوئے اور کس قدر جو ہے آج جب ہم کہتے ہیں نا آسمان سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، لال رنگ کا ہو جاتا ہے، 10 محرم کے دن لوگ دیکھتے ہیں آسمان بھی روتا ہے اور انسان بھی روتا ہے، پرندے بھی روتے ہیں، پرندے بھی روتے ہیں، لیکن اے انسان تیرا دل کتنا پتھر ہے، کتنا سخت دل ہے کہ نوازے رسول کے جو ہے شہادت پر جو ہے تمام جو ہے مخلوق رو رہی ہے، لیکن تو جو ہے رو نہیں رہا۔ کس قدر جو ہے تیرا پتھر دل ہے۔ یہ تو نواسے تھے نواسے، کیا کہا؟ یہ تو نواسے تھے نواسے۔ سنو غور سے لوگوں، اے پالی تانا والوں سنو، کہا یہ تو نواسے رسول تھے، بڑی محبت کرتے تھے آقا۔ لیکن آج کا اگر کوئی جو ہے سید اگر بڑا عمر والا ہو، بچہ ہو یا عورت ہو، سید زادی ہو، بڑی ہو یا بچی ہو، سنو کوئی کسی کے لیے جو ہے عرش ہلتا نہیں، روتا نہیں۔ عرش جس کے لیے رو پڑے، عرش جس کے لیے کام پڑے، وہ سیدوں کی ذات ہے۔ کہہ دو طرف کے کہا آج بھی اگر کوئی بھی قوم کا بندہ جو ہے مرد عورت مر جائے نا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی موت واقع ہو، آسمان نہیں کانپتا، آسمان نہیں لرزتا، لیکن آج بھی تاریخ گواہ ہے۔ اور سنیں غور سے سنیں کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی سید یا سید زادی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے نا، آسمان لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ لوگوں آج کا جب سید جو ہے اس دنیا فانی سے جائے اور جو ہے موت واقع ہو تو جو ہے آسمان لرز جائے، یارو یاد رکھو کہ جب وہ کربلا میں اور ظالموں نے ظلم کیا تھا تو آسمان نہیں بلکہ عرش کے فرشتے رو پڑے تھے، عرش کے فرشتے یہ کانپ اٹھے تھے، مالک یہ تیری مخلوق، یہ تیرے نانا جو ہے تیرے محبوب کی امت، یہ تیرے محبوب کی امت جو تیرے محبوب کے نواسوں پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم ستم ڈھا رہے ہیں۔ کہا ہمیں ظلم ستم سننا ہے، اور کس قدر جو ہے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا گیا، کس قدر جو ہے اہل بیت اطہار کو جو ہے ظلم ستم سہنا پڑا تھا۔ اے لوگوں ظلم ستم سہا اور تکالیف بھی سہی، لیکن جو ہے کس قدر جو ہے انہوں نے ظلم ستم سہا۔ آج میں آپ کو بتاؤں اور اتنا بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے جو ہے کل سے شہادت کو سننا ہے، اور وہ شہادت جو ہے آج جس شہادتوں پر شہادت ناز کرتی ہے وہ شہادت ہم نے سنی وہ شہادت آقا حسن مجتبیٰ کی۔ آقا حسین فرماتے ہیں کہا کربلا بیان کرو میرے بھائی کی جو ہے میرے آقا میرے امام کی جو ہے وہ اس جو ہے ظلم ستم کو ذرا بتا دو، تاکہ لوگوں کو نانا جان کے امتوں کو خبر ہو جائے کہ کس قدر
जो है बड़े भाई पर भी जुल्म किया गया था। ये ना समझे कि छोटे भाई पर वो नवासा आका हुसैन पर ही जो है करबला पर जुल्म किया गया था, उनके घर वालों पर, उन 72 पर जुल्म किया गया था। नहीं नहीं, बल्कि जो है करबला से पहले जो है जुल्म सितम कहे किए, वो जुल्म सितम को हमने सुना। अब जो है जुल्म सितम और भी सुनने हैं। उन जालिमों ने किस किस कदर जो है जुल्म सितम से डाले, और जिस कदर जो है उस नाना जान के नवासों ने सब्र इस्तकामत का जौहर दिखाया, पैकर बन के खड़े रहे। वो अली के लाल थे, वो शुजाअत के पैकर थे। अगर जो है अपने बाबा की वो तलवार, जिसको तलवार कहा, मैंने कहा ना, जो है जिसके जोड़े रब लिखे, जिसको अल्लाह तलवार अता करे और पुकारने वाला उस तलवार की शान में कहे ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ये वो तलवार थी जो करबला में चली थी तो जो है कई को फिनारे जहन्नम पहुंचाया था। अरे वो हुसैन इब्ने अली थे, अली। आप सुने जब सैयदा पाक ने कहा था मौला मुश्किल कुशा को, कहा कल जो है हमने सुनना है वो अब्बास अलमबरदार को सुनना है, वो अब्बास अलमबरदार। कहा ए मेरे सर के ताज, कौन कह रहा है? सैयदा पाक। कहा ए मेरे सर के ताज जरा सुनो। कहा आपसे पहले जो मैं इस फानी दुनिया से रुखसत हूँ, सैयदा पाक फातिमा तो जरा सलामुल्लाह अलैहा कहती है मौला मुश्किल कुशा से, ए मेरे सर के ताज, जो है आप जो है मेरे जो है इस दुनिया फानी से रुखसत होने के बाद फिर आप जो है दोबारा निकाह करेंगे। कहा मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, कहा जिसका रिश्ता रब जोड़े, क्या फिर मैं वो रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहूं? क्या ये अली से नहीं हो सकता? कहा सैयदा पाक ने कहा आप जरूर निकाह करेंगे, लेकिन किस कदर करेंगे और किसके लिए करेंगे? कहा सुनो सुनो। कहा ये अब्बास थे, अब्बास के जो जंग में उतरते, जो शुजाअत के पैकर बन के नजर आते। कहा वो अली का लाल किस शान का था, किस शान से उन्हें जो है तरबियत की थी। कल जो है उनके हवाले से भी सुनना है, लेकिन जो है इतना सुन ले कि जो है अब्बास अलमबरदार जो आए तो किसके वतन से आए? कहा वो नाम सैयदा पाक के नाम, हो बहु नाम सैयदा पाक का नाम जो है, उस नाम के साथ जो है सैयदा पाक ने कहा मेरे नाम के नाम बराबर एक जो है बांदी होगी, उसका नाम भी फातिमा होगा। कहा ए अली तुम उनसे, ए मेरे सर के ताज, तुम उनसे निकाह करोगे और निकाह करने के बाद उससे एक बेटा पैदा होगा। क्या होगा? एक बेटा पैदा होगा जिसको आज सूबे क़यामत के दिन जो है अब्बास कहा जाता है। अब्बास। कहा ए सैयदा पाक जो है ये तो तुमने कहा कि मैं जो है फातिमा नाम की जो है एक कनीज से निकाह करूंगा और जो है उससे अब्बास नाम का एक बेटा पैदा होगा, क्या काम आएगा? कहा मेरे लख्ते जिगर हुसैन इब्ने अली को करबला में वो काम आएगा। कहा वही जो है शुजाअत का जौहर दिखाएगा, और किस कदर दिखाएगा आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। जो है कल जो है मैं आपको बताऊंगा कि वो अब्बास अलमबरदार कौन थे, कि जिसके अलम को हमें आज जो है कायम रखना है। ये तो बात आपको मैं कल बताऊंगा, आपके ईमान ताज़ा होंगे, और जो है किस कदर जो है आका हुसैन पर जुल्म हुआ था, और जो है मदीना मुनव्वरा आपने जो है आका का उस प्यारा शहर को जो है छोड़ा था, और किस कदर जाओ अश्का जो है जिसकिया भरते हुए रोते हुए उस मदीना मुनव्वरा को छोड़ा था। इंशाअल्लाह जो है कल जो है मैं आपको उस पर जो है बयां करता रहूंगा और आगे चलता रहूंगा। कहा जब वो जो है मदीना मुनव्वरा को छोड़ेंगे और करबला जो है कुफा होते हुए करबला जो है आप जो है रुखसत होंगे, किस कदर गए और किस जो है सहारे गए, किस शान के साथ गए, मैं आपको जरूर बताऊंगा इंशाअल्लाह। कल से जो है आका हुसैन की शहादत
शहादत को भी जो है हमें सुनना है, उनके शहजादों की शहादत को, और मोहम्मद जो है मुस्लिम बिन अकील की शहादत को भी कल सुनना है कि सबसे पहले आका हुसैन के जो है शहादत जिसने सबसे पहले नौश फरमाई थी जो है वो मुस्लिम बिन अकील, और उनके दोनों शहजादों की जो है शहादत को सुनना है। अब्बास अलम बरदार को भी सुनना है, दास्तान करबला को इंशाअल्लाह कल हमें सुनना है। वक्त जो है वक्त ने हमें साथ दे दिया, अब जो है इंशाअल्लाह वक्त के साथ आप आया करें और वक्त के साथ जो है आते रहें और जो है इस दास्तान करबला को सुने और ईमान को ताज़ा करें और अपने बच्चों को भी जो है ईमान अफरोज जो है ये बातें सुनाएं और सिखाएं और बताएं कि किस कदर जो है नाना के उन नवासों ने जो है मज़हब इस्लाम पर आँच न आने दी, बल्कि जो है अपनी तलवार निकाल कर बता दिया जो है सब कुछ दे सकते हैं, घर का घर लुटवा सकते हैं, गुंबद लुटवा सकते हैं, खानदान लुटवा सकते हैं, अपने आप कट सकते हैं, लेकिन नबी के दीन को जो है आज नहीं आने देंगे। आज हमें ये दर्स देना है, ये सिखलाना है, ये बतलाना है। तो इंशाअल्लाह कल जो है हम गुफ्तगू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम। धड़कते